See, in this question, A is given unit vector, B is also unit vector, resultant is also unit vector. All three are equal. Putting these value in the formula of vector sum, तो उसमें value put कर दी, cos theta is coming -1/2. Therefore, theta is 120 degree. Now we have to find the vector difference. Vector difference का formula लगाएंगे, यहाँ पे minus आएगा. Theta remains same. Put the value of cos 120 and simplify it. It comes √3. Clear? So that's what was the question. Clear to everyone? Yes, sir. √3 is the right answer. Okay. Seeing the next question. देखिए ये हो गया था ना, डायरेक्शन डिस्कस हो गई थी इसकी. यस, वी आर डन इट. इसका क्या आंसर है? कौन से क्वाड्रेंट में मिला आपको ये? मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, having velocity 2i cap plus 2j cap at any point of time, which quadrant it will belong at that moment? First. First is not the right answer. Velocity है ना, I told you draw the diagram है ना. इस पर जो है सेंटर रहेगा ओरिजिन पर. It is going like this, and when you are when it is in the first quadrant, so I component will be negative. ये I minus होगा, J plus होगा. When it is in this quadrant, both the components I and J are negative. In this quadrant, I component is positive, J component is negative. In the fourth quadrant, it will have J component positive, I component positive, J component. The answer is fourth quadrant. Clear? उस समय उस इंस्टेंट पे जब आपको सब पोजीशन दे दी गई कि एक्स वाई प्लेन में घूम, एवरीथिंग इज गिवन टू यू, it is in the xy plane and center is at origin. In that moment, when its velocity is this much, it has to be in fourth quadrant. Clear? After that, this will keep on changing. Magnitude may remain same. इसका जो magnitude होगा 4 + 4 √8 होगा. Directions are keep on changing. When यहाँ पे आ गए, यहाँ पर है तो at this moment what will be the velocity? It will be heading towards up. Only J component will be there. Magnitude अगर बोलेंगे uniform velocity है, तो magnitude will remain 8 √8 J cap हो जाएगा. When it is crossing the x-axis, positive x-axis. When it is crossing the negative z-axis, it will be heading downward. Clear? Things are given to you. Origin is at, center is at origin, so you cannot deviate from this. Now you will have one answer. अभी ये नहीं बोलना सर इसको शिफ्ट कर लिया, शिफ्ट भी कर लिया ठीक है, लेकिन कहाँ शिफ्ट करके ले जाएंगे? यहाँ पे ले जाएंगे तभी भी कंपोनेंट्स तो वही रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे. इसमें ले आए इस वेक्टर तो ऐसे ही दिखेगा आपके लोगों, ये कंपोनेंट पॉजिटिव, ये कंपोनेंट भी पॉजिटिव, कहीं भी शिफ्ट करके लेके जाओ. But it is currently it is in the fourth quadrant. After that you shift it, so that is different issue. But now आपको बता दिया गया कि भाई origin center में है and it is revolving. Shifting हम लोग एंगल के लिए करेंगे ना, एंगल निकलना है, that time shifting is another. Otherwise let it be there wherever it is. आप particular direction के लिए कौन सी direction में, but components के लिए we have to be in particular quadrant, then only components will be there. Clear? All right. So Yeah. So can you please explain it again? It is going anti-clockwise. So when it is in fourth quadrant, its velocity will be like this, somewhere like this, tangential velocity. So this component will be positive. I cap is positive. J cap is also positive. Both are positive shown here. In other quadrant,
both the components will not be positive. जैसे इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, इट इज हेडिंग लाइक दिस, वेलोसिटी ऐसे है उसकी, तो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा, एक ऊपर की तरफ आएगा, ये तो प्लस जे कैप हो जाएगा, दिस विल बी माइनस आई कैप, बट वेयर एज बोथ आर गिवन प्लस. क्लियर? Yes, sir. Can you do this question now? होमवर्क में रिपीट विज मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर हमें क्लॉकवाइज कर दें, व्हाट विल बी द आंसर इन दैट केस? ये होमवर्क में कर सकते हैं, सेकंड पार्ट. ओके. Sir, second quadrant. Maybe I have to check it. Okay, first answer is coming second quadrant. I am not confirming right or not. We'll discuss in the next class. Check करने पड़ेंगे ऐसे ही जैसे ये किया. Same method you have to follow to get the right answer for clockwise. Arrow ऐसे हो जाएंगे अभी. Arrows will be like this. In all quadrant you have to check both components should be positive. Again. All right. Yes, sir. Okay. So this part also note down. What was the next one? और क्या था इसके बाद? Dot product we started and homework was there. A dot B you were supposed to calculate. So let's see what is coming. What is the answer coming for that? Okay, ये हो गया था ये. This was done. This was done. ये भी था एक क्वेश्चन देखो. इसमें C dot D will be equal to 0. तो C dot D is CD cos theta. इसको 0 put कर दो. C is given 3, D is given 4. So cos theta is 0, therefore theta is 90. So first answer is 90. Second part 12. C dot D is 12. This is 3 into 4 and this is cos theta. Cos theta coming is 1, therefore theta will be 0. And last part में minus 12 है, तो यहाँ पर minus 1 बचेगा. Minus 1 is cos 180, therefore theta is 180 degree. Clear? ये था होमवर्क. Yes, sir. तो मैक्सिमम 12 है, देखो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है. मैक्सिमम 12 है when angle is 0. मिनिमम minus 12 है when angle is 180. So all the answers will be between minus 12 and plus 12. उससे बाहर नहीं जाएंगे. इसको मल्टीप्लाई कर लो, डॉट प्रोडक्ट में कितना है, उनके मैग्नीट्यूड कितने हैं, 3 units and 4 units. यूनिट इसलिए लिखा है, we don't know C is which vector, D is which vector. It can be meter also, it can be velocity meter per second also, it can be anything. So 3 and 4 इनको मल्टीप्लाई कर लो 12 एंड उसके सामने माइनस भी लगा लो. इसकी रेंज जो है फ्रॉम -12 to 12 तक, इसके बाहर नहीं आएगा. जो सिंपल एल्जेब्राइक प्रोडक्ट है, मैक्सिमम पॉसिबल इज 12. इट विल बी दैट मच ओनली, अदरवाइज लेस देन दैट. 90 पे 0 आ रहा है ना. देखो दोनों नॉन जीरो है बट उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, because it is the angle only. Angle makes the difference in almost all the vector operations. All right, getting this point. Moving on to the next one. This is done. Yeah, done. Okay.
या डन। Yes, sir. ओके, तो देखो ये सब हो गए थे, ये दिया था आपको। इसमें देखो जब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे इसमें, तो यहाँ पर आई डॉट आई आएगा पहला, तो दैट विल बिकम 1, विल बी लेफ्ट विद ax bx इन सेकेंड प्रोडक्ट। इसके साथ जब प्रोडक्ट होगा आई डॉट जे, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओनली वेक्टर्स जो है, यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर, दे विल बी मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू द डॉट प्रोडक्ट। तो ये आई डॉट जे इज 0, yesterday we did it है ना, ये टर्म पूरा 0 हो गया। और आई डॉट के इज ऑल्सो 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ये बचा देखो, इसके बाद जे डॉट जे विल बी 1, ए वाई बी वाई विल बी लेफ्ट, दिस विल बी 0, this will be 0, this will be 0, k dot k will be 1, तो az bz will be left। तो ये तीन टर्म्स बचे, others have become 0। तो this is the second formula of dot product। पहला फार्मूला क्या था, ab cos theta, but this is ax bx plus ay by plus az bz। This is the second formula when vectors are given in unit vector form। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिए तो ये फार्मूला लगाएंगे। मैग्नीट्यूड एंड एंगल्स गिवन है, तो पहले वाला फार्मूला ए बी कॉस थीटा। क्लियर? तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिक्वायर्ड इन मेनी चैप्टर्स। ठीक है, तो नीचे क्वेश्चन भी, इसको भी नोट कर लो, नीचे क्वेश्चन है उसका भी आंसर बताओ। आई के ऑप्शन को ए एक्स बोलते हैं ना, और बी एक्स बोलते हैं। फर्स्ट वेक्टर का जो होगा वो ए एक्स होगा। इसमें ऑप्शन 1 है, यहाँ पर इसमें 3 है, ये ए एक्स हो जाएगा, दिस विल बी बी एक्स। सिमिलरली ए वाई, this will be by, this will be az, this will be 1 will be bz, like this। ax and bx are coefficient of I cap in both the vectors and so on। तो उनको बोलिए क्या आंसर आएगा इसका। Sir, 10. Okay, first answer coming is 10। 3 So plus 10. 4, 3 plus 4 plus 3। इसमें आई कैप जे कैप तो नहीं बचेंगे? कभी कभी तुम लोग आई कैप जे कैप भी उसमें लगा देते हो, आई कैप वगैरह नहीं है उसमें। देखो 1 हो गया हुआ है ना, और ये डोंट टू डू अगेन एंड, ये पूरा नहीं लगो, ऐसा नहीं करो पूरा। यू कैन यूज द फार्मूला डायरेक्टली, ओनली फार्मूला यूज करके कर सकते हैं, अभी पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। फिर तुम लोग उसमें आई कैप बचा के लाते, आई कैप जे कैप बाद में। तो दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट, नो आई कैप जे कैप शुड बी लेफ्ट इन दैट बिकॉज इट इज द स्केलर क्वांटिटी। कोई भी वेक्टर के सिम्टम्स नहीं लेंगे उसमें, आई कैप जे कैप कुछ भी नहीं रहेगा, ओनली मल्टीप्लाइड एंड डिजिट्स आ जाएंगे, स्केलर नंबर आ जाएगा। कीप इट इन माइंड ऑलवेज। तो ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, है ना। ए डॉट बी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, इसका 1 है और इधर का 3 है, और इसमें 2 है और उधर 2 है, जे का भी, दोनों जे का 2 है। इसमें फर्स्ट के का 3 है और उधर 1 है ना। दिस इज कमिंग 3 plus 4 plus 3 is equal to 10 units। That's all।
तो इसको यूज कैसे करेंगे? देखो जब हम वर्क पर एनर्जी पढ़ेंगे, दिस वेक्टर विल बी फोर्स इन न्यूटन, दिस वेक्टर विल बी डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। तो हम डॉट प्रोडक्ट लगेंगे, फिर अपना आंसर क्या आएगा, यहाँ पे W लिखेंगे, F डॉट डी, तो वर्क डन आ जाएगा, तो जूल हो जाएगा वो। तो दैट्स हाउ थिंग्स विल बी चेंज। बट यहाँ पर हम लोग इन जनरल पढ़ रहे हैं, डिफरेंट चैप्टर्स में 12th में जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, और ये आपका एरिया वेक्टर बन जाएगा। तो फ्लेक्स निकालते हैं ई डॉट ए, तो वहां पर डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। आई मीन रिजल्ट तो यही आएगा, यूनिट्स विल बी चेंजिंग अगर यही वेक्टर दिए तो सेम वैल्यूज के साथ यू कैन मेक मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन फिजिक्स इन डिफरेंट चैप्टर्स। जहां जहां भी डॉट प्रोडक्ट आएगा, ए एंड बी विल बी, name will be changed, method will remain same, units will also be coming into action. Clear to everyone? Yes, sir. Noted. चलो आगे देखिए, इसमें इसका भी some other type of questions are asked. Dot product is used in determining the angle also, and other things, other places also we are going to use it. So let's see some more points related to dot product only. इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखते हैं आगे। ये फार्मूला याद रखना है आपको, है ना। ओके, ये होमवर्क क्वेश्चन भी है आपके लिए। इफ ए इज गिवन एंड बी इज गिवन, ए आपकी प्रैक्टिस के लिए, दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम, दिस इज आल्सो होमवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज जे, है ना, जे कैप, इसमें आए नहीं है फर्स्ट वाले सेकंड वाले वेक्टर में, जे कैप एंड के कैप है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, हाँ, उसमें तीनों हैं। ऑप्शन देख के मल्टीप्लाई करना, आई के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे, जे के साथ, के साथ, है ना। Particularly in NEET examination, they are a habit of changing the sequence. You should be careful. नोट कर लो इसको, फिर देखते हैं आगे की कुछ और some points, some more points. Done. Okay. तो देखो अभी कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर, टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, कैसे पता लगेगा? डॉट प्रोडक्ट से पता कर सकते हैं हम लोग। डॉट प्रोडक्ट इज यूजफुल टू गेट टू फाइंड whether given vectors are perpendicular or non perpendicular. तो cos थीटा आता है उसमें, डॉट प्रोडक्ट में दोनों रिलेशन को इक्वेट कर दिया। ए डॉट बी इज दिस आल्सो, दिस आल्सो, इफ थीटा इज 90 डिग्री, दिस कंप्लीट टर्म विल बी जीरो और डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो, तो जीरो आ जाएगा यहाँ पर। तो वी गेट दिस कंडीशन, ax bx plus ay by plus az bz will be zero. If we get this condition, this is, then both the vectors will be perpendicular. अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, है ना, इसका मतलब क्या है? वो दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे आई डॉट जे का जीरो आता है डॉट प्रोडक्ट, दोनों परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, जे डॉट के का भी जीरो आता है। तो ऐसे कोई और वेक्टर्स है तो
जिनका हमें डायरेक्शन पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं, बट उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो. If it is found to be 0, then they will be mutually perpendicular. We can have two type of question on this particular point, which is important. एक तो आपको बोलेंगे ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, प्रूव करके दिखाओ. तो क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 0 आ गया तो यस. फॉर एग्जांपल नोट कर लो, तो क्वेश्चन भी समझा देता हूँ, देन यू नोट. प्रूव दैट वेक्टर्स a and b given by this relation are mutually perpendicular. तो हमने उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखा, कितना आ रहा है, 12 minus 12 0 आ रहा है. डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो वी कैन से कॉन्फिडेंटली बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ये होगा. सेकंड टाइप वी आर गोइंग टू सी, ये नोट डाउन कर लो. दिस टॉपिक इज गिवन इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट. अभी हम लोग कौन सा चैप्टर फिनिश किया था, थर्ड है ना, फोर्थ फिफ्थ में दिया होगा. वर्क फॉर एनर्जी में ये दिया है आपके एनसीईआरटी बुक में. नो फिफ्थ नहीं, 6 होगा शायद. 1 2 3 4 5 6 में होगा वर्क फॉर एनर्जी. Okay, we'll see. Second type of question based on this point is like this. जैसे ये है, चलो इसको थोड़ा ऊपर ही कर देते. You can see all things together. हाँ देखो, दिख रहे हैं. Now second type of question ये है आपके सामने. A is given by this relation, B is also given. Both vectors are given in unit vector form. Are mutually perpendicular. They have told you, they have given you, they are perpendicular. Then find the value of unknown. Unknown C जो है इसमें वो निकालना है. कंडीशन क्या है, you have been given that these vectors are mutually perpendicular. आपको बोल दिया गया ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो C की वैल्यू क्या होगी. इन अदर वर्ड्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ C बोथ आर परपेंडिकुलर, ऐसे बोल सकते हैं क्वेश्चन. या तो परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. ये कंडीशन यूज कर लो. आ रहा है कुछ वैल्यू ऑफ C, आर यू गेटिंग इट? -9/2. -9/2 is the first answer coming. बोलिए, what about others? ये कंडीशन लगा दो इसमें. Since both are okay, so since both are perpendicular, therefore A dot B will be 0. In other words, AX BX plus AY BY
plus az bz should be equal to 0. So 2 into 3 plus 3 into 4 minus minus plus हो जाएगा 4 into c is equal to 0 है ना. तो ये हो गया आपका 6 plus 12 18. तो c will be minus 18 by 4 minus 9 by 2. ठीक है. That's how you have to solve it. These two types of questions. इसमें mostly second type of questions are used many places. Yeah, sometimes it will not be given to you mutually perpendicular. In some of the relations, जैसे हम लोग मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ते हैं, वहां पे हमें पता होता है कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर है, but it will not be given in that case. You are supposed to know. और अननोन पूछ लेंगे जैसे c find out value of c. यहाँ पे दिया है आपको because we have to give direct or indirectly. It should be given. परपेंडिकुलर है. बोलिए इसमें किसी को डाउट है क्या? डू यू हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन? डॉट प्रोडक्ट के टॉपिक चल रहा है अभी. बोलिए. तो ऑल द पॉइंट्स आर रिलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस वन. प्रीवियस आपने नोट किए हैं, उसको पढ़ लिया है तो यू विल बी कंफर्टेबल. नहीं तो फिर मिस होते हैं पॉइंट्स. यू विल फाइंड डिफिकल्टीज हियर. क्लियर? यू कैन आस्क योर डाउट्स इफ यू हैव. कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो यू जस्ट आस्क. डॉट प्रोडक्ट का ये दूसरा फार्मूला है, ये वाला यहाँ तक. अगर 90 डिग्री होता है डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा भी आते हैं. 90 डिग्री होता है तो ये 0 हो जाता है. तो लेफ्ट हैंड साइड ये यू गेट द इक्वेशन है ना, जैसे इसको दिया है तो सॉल्व कर लिया हमने. c की वैल्यू पता हो गई. इफ यू पुट द c की वैल्यू हियर और डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो लाइक दिस, यू विल फाइंड इट इज 0. इट विल बी कमिंग 0 इफ यू आर डन इट करेक्टली. आपने करेक्टली निकाला है तो c की वैल्यू पुट कर दो एंड देन डू लाइक दिस. ये जो हमने दिया किया था ना इसमें, तो 0 आना चाहिए. इट मीन्स यू डन इट करेक्टली. ओके. एंगल निकालना है तो नहीं, चलो एक और बीच में पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है. देखो, कंडीशन फॉर वेक्टर्स टू बी पैरेलल. पैरेलल के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम? ऐसे इनके रेशियो इक्वल होने चाहिए, है ना. वेक्टर्स, दो वेक्टर्स है ए एंड बी, तो इनके जो कोएफिशिएंट के रेशियोज हैं दे शुड बी इक्वल. मतलब ये कहाँ से लॉजिक आया? जैसे हमने पढ़ा था कि किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वेक्टर ए इज गिवन एंड 2 से मल्टीप्लाई किया 2a हो जाएगा, दैट विल बी b. 3 से मल्टीप्लाई किया 3a हो जाएगा, दैट विल बी c. लाइक दिस. तो दिस वेक्टर में बी 2 times 3 times और हाफ टाइम ऑफ दिस. इट कैन बी दिस. बट सारे कोएफिशिएंट जो है सेम प्रोपोर्शन में चेंज होंगे. तो इसका मतलब क्या है? रेशियो जो है दे शुड हैव ए कांस्टेंट रेशियो. इट कैन बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1. ऑल शुड हैव दैट प्रॉपर्टी. बट कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें? मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर नंबर विद द वेक्टर्स. बिगनिंग में जब पढ़ा था हमने, किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेक्टर के साथ. जैसे ए था तो मैंने बोला 2a निकालना है तो डबल कर दो, माइनस 3a निकालना है ट्रिपल कर दो, माइनस करके ऐसे. इट वाज द टॉपिक अंडर multiplication of scalar number with the vector. On that grounds we can just say one vector will be certain times of other vector. It can be full numbers or fraction. तो सभी के ratios equal आएंगे. तो जैसे ये क्वेश्चन है, A is given this, B is given this, तो बोला है if they are parallel find the value of B. तो बस इतना ही कर लेंगे. ये first two we can just take ax is 1, bx is 3 and this is 2. में भी यहीं से आ जाएगा, ज्यादा तीसरा रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं. तो b is equal to 6. if you put 6 here, देखो यहाँ पे 6 पुट करो तो you come to know ये जो वेक्टर है 3 times of the first वेक्टर है कि नहीं. देखो ये 1 की जगह 3 हो गया,
2 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया 9. तो b वेक्टर इज 3 टाइम्स. यहाँ पे इफ यू सी केयरफुली b वेक्टर इज 3 टाइम्स ऑफ इट. तो इस तरह से one vector will be certain times of other vectors. By seeing itself you should be able to know that they are parallel, means उनके बीच का एंगल 0 है. अगर इस तरह का कोई तुम्हें रिलेशन दिखता है तो यू कैन वेरी इजिली से कि पैरेलल है. अगर माइनस कर दे इसको, तो ये -6 कर दे या माइनस ऐसे कर, ये 6 माइनस होते तो ये भी -6 आ जाता. तो क्या होता, ये वेक्टर बी वेक्टर उसका 3 टाइम्स तो है बट -3 टाइम्स है, एक ऐसा हो जाता है, एंटी पैरेलल हो जाते हैं. बट इट इज अगेन यू कैन इजिली से both are parallel or anti-parallel to each other by seeing both the vectors very carefully. Even you can save your time of calculation if you observe them carefully. Clear? समझ में आ गया? पैरेलल में क्या करना है, उनके रेशियो, उनकी कोएफिशिएंट के रेशियोज इक्वल होने चाहिए and then only they will be parallel to each other. Got it? समझ में आ रहा है ये पॉइंट्स? They are very useful points as applications काम आने वाले हैं आपको. Okay, moving on to the next point. Let's see एंगल निकालने का. देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट इज यूजफुल. कैसे? देखो वी नो द फर्स्ट फार्मूला डॉट प्रोडक्ट का. देखिए वापस जो हमने cos थीटा वाला देखा था ना, विद दैट वी कैन फाइंड आउट थीटा. तो क्या करना है, देखो a डॉट b इज ab cos थीटा, देयरफॉर cos, इसको नीचे भेज दो, cos थीटा विल बी a डॉट b डिवाइडेड बाय ab. a डॉट b इज द डॉट प्रोडक्ट एंड a एंड b क्या है, दे आर द मैग्नीट्यूड्स. किसके मैग्नीट्यूड्स? ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली, वेक्टर a एंड वेक्टर b. ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालना. अभी हमने सीखा था डॉट प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो न्यूमरेटर में आ गया. इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकाल लेने, वो डिनोमिनेटर में आएगी इनटू करके. तो जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा. फिर थीटा की वैल्यू बता सकते कितने टेबल में देख के या फिर डायरेक्ट अगर कुछ ऐसा आ गया आंसर, रेगुलर वैल्यूज आ गई तो विदाउट टेबल वी कैन से. कैन यू डू इट हियर इटसेल्फ? क्या आप बता सकते हैं कि एंगल कितना आएगा ए एंड बी के बीच, सॉल्व करके जल्दी से? यस सर. या डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ए एंड मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड करना पड़ेगा. डू इट फास्ट. ये यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू फॉर प्रैक्टिसिंग. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, मिस्टेक्स कम होंगी. Try to do it fast and accurate always. सर 180. कैसे? सर वो माइनस वेक्टर बी -2 टाइम्स है वेक्टर ए का. हाँ ठीक है. सर तो नेगेटिव उससे हो भी गया देखो. था. ओके, सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके देखो आ रहा है 180 इस मेथड से, फ्रॉम दिस मेथड. With this also cos theta should, cos theta means -1 आना चाहिए. cos, if theta is 180, cos theta should be -1, therefore theta will be 180. Simplify करके देखो. Do you get -1 right hand side?
मैग्नीट्यूड इज कमिंग रूट हाँ सर 14 -1 आ रहा है। का, रूट 14 आ रहा है मैग्नीट्यूड ए का। देखो बी का भी मैग्नीट्यूड निकाला तो रूट 56 आया, डॉट प्रोडक्ट निकाला तो -28 आया कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके। तो वैल्यू पुट कर दी फार्मूले में, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ, जस्ट लेट मी मेक इट सम मोर बिगर। तो ओके, तो फार्मूले में वैल्यू पुट की, -28 ऊपर है और दिस इज, इसको अंदर शिफ्ट कर दिया रूट के अंदर, इट गेट्स कैंसिल। देखो ये सब कैंसिल होने के बाद माइनस बाहर था और ये रूट के अंदर 1 आ जाएगा, 28/20, तो -1 हो गया ये। तो देयरफॉर थीटा इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यस, बाय ऑब्जर्विंग इटसेल्फ it was known कि वेक्टर b is -2 टाइम्स, है ना, b is -2 टाइम्स ऑफ a। तो दोनों जो है एंटी पैरेलल हो गए, इसका मतलब 180 डिग्री आना चाहिए। गॉट इट? Clear to everyone? That's the way you have to do the, you have to find out the angle if it is asked. If I say you, this is the force and this is the displacement, and find the angle between both the vectors. So you can find out by using this method. Yeah. After this we will have the cross product left, उसको भी देखते complete कर सकते हैं. Let me see one more question we'll see of this angle, finding the angle. Okay. आंसर लिख लीजिए और यू कैन डू इट एट होम आल्सो। देखो जैसे ये है, इसमें कैसे करेंगे? फाइंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये वेक्टर एंगल ए के साथ कितना, आई मीन वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो एक ही वेक्टर दिया है, दूसरा वेक्टर कौन सा हो जाएगा? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम बी वेक्टर ले सकते हैं क्या? यस, वी कैन टेक इट बी एज ए एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या बनेगा? +i। प्लस आई कैप। तो बी कैन बी टेकन प्लस आई कैप। एक्स एक्सिस दिया ना, तो उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया, तो बी वेक्टर ए इज गिवन, बी वेक्टर विल बी आई कैप। दैट्स ऑल। So you have one vector, other vector. Things are simple now. Calculations easy हो गए. Can you get it? Can you see? चलो ठीक है, you do yourself, then you see the answer. First complete कर लो. Every ये time इसमें आया। you calculate fast and see, then your speed will increase. देखो B हो गया I cap because x axis दिया. A is this one. A dot B will be 2 dot product से.
Magnitude of A will be root 13. Magnitude of B will be 1. Putting the values here. So theta is cos inverse 2 by root 13. So ऐसे आंसर छोड़ दो फिर इसको. Is there any other way to? Is there any other way to get this answer? Answer is yes. There is one more method to get to solve this question. देखिए दूसरा मेथड क्या है, अल्टरनेट मेथड बताता हूँ मैं आपको. देखो, okay, note down this, just both the points you can देखो. alternate method भी बता दो, then you can note. देखो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि ये जो a वेक्टर, ये वेक्टर a है ऐसा, and it has 2 units towards x-axis and 3 magnitude 3 along the y-axis, magnitude 2 along the x है, और तो ये राइट I and j म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, हाइपोटेन्यूज विल बी रूट 13. तो नाउ यू कैन सी यहाँ से अभी आपको tan थीटा चाहिए. अगर ऑप्शन में सपोज cos थीटा नहीं होता तो tan थीटा के फॉर्म में आंसर होता है या sin थीटा के फॉर्म में. यहाँ से देखो, डू वी गेट द cos थीटा. ओके एक मिनट, यहाँ से देखो अभी आपका ये ड्रॉ हो गया, तो नाउ कितना आया था cos थीटा. Cos theta was how much? You see the now diagram, cos theta is 2 upon root 13. So therefore, theta is equal to cos inverse of 2 by root 13. But what happens generally, they will not give you in terms of cos, है ना. Sin के फॉर्म में अगर cos के टर्म में आंसर नहीं दिया, it may be in terms of sin. Sin के टर्म में कितना आएगा? Sin theta will be 3 by root 13. Tan theta will be 3 by 2. So any answer, you search for all the possible answer. अगर ये नहीं मिलता तो tan theta हो सकता है ऑप्शंस में गिवन. आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. और sin theta हो सकता है ऑप्शन में. sin theta कितना आएगा? It will be 3 by root 13. The moment you get sin theta or cos theta, draw the right angle triangle, find out the other side, and then you search for the sin theta, cos theta, tan theta, sec theta, जो भी. That's what you do follow. हमेशा ऐसा नहीं cos theta के टर्म में ही आंसर दिए होंगे. So you should be exploring the other possibilities also. बोलिए क्लियर सबको? आगे देव तुम लोग वो लाइन पर. Yes, sir. Okay. Done. Yes. No doubt so far. Anything you want to go back? कुछ पीछे देखना है या कुछ पूछना है? Just confirm because I think this इसमें देखता हूँ हो गया है शायद ये. हाँ, कंपोनेंट वाला पार्ट बचा है इसमें. डॉट प्रोडक्ट में कभी कभी कंपोनेंट निकालने के लिए क्वेश्चन आता है. That also will do it. Dot product will help us to get the component of one vector over the other vector. Let's see the question, then we can go back, revise the component. तो ये क्वेश्चन है एक एनसीईआरटी बुक में, ये वाला. तो इसमें बोला है, एक मिनट इसको जस्ट, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन ये देख, सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट तो इजी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, इसके मैग्नीट्यूड निकालने है, एंगल वगैरह निकालना है. दिस इज इन द फोर्थ चैप्टर. क्वेश्चन चैप्टर 4 का 22 है.
So what are the components of vector A along the direction of this? ये कोई वेक्टर है, सपोज ये कोई ऐसा इधर वेक्टर है, वेक्टर ए इधर है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा? कंपोनेंट मींस इफ यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन दैट वेक्टर, तो कितना, हाउ मच वैल्यू ऑफ दैट परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। तो कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। हाउ डज डॉट प्रोडक्ट हेल्प अस टू गेट द कंपोनेंट? तो देखो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, वेक्टर ए है इधर और बी इधर है, तो ए का बी के ऊपर कंपोनेंट मतलब ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये था, उसकी कितनी लेंथ, इसके कितनी लेंथ इसके अलॉन्ग आ रही है, उसकी शेडो है ना, प्रोजेक्शन, इधर से लाइट डालो तो कितना प्रोजेक्शन, कितनी शेडो उसके ऊपर, इसके ऊपर पड़ेगी, दैट्स व्हाट इज द प्रोजेक्शन और कंपोनेंट। तो ए cos थीटा, मतलब हमें ए का बी की तरफ निकालना है, तो इट विल बी ए cos थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में ए cos थीटा आता है, तो ए cos थीटा को एक तरफ कर लेंगे, अदर थिंग्स विल बी ऑन राइट हैंड साइड, उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें कंपोनेंट मिल जाएगा। तो लेट्स सी दिस। तो सिंस ए बी इज इक्वल टू, since AB is equal to A dot, I mean since A dot B is equal to AB cos theta, तो हमें क्या चाहिए था, A cos theta चाहिए ना, A cos theta, तो B को इधर भेज दो, और B का अगर A की तरफ हो तो यहाँ से इधर ऐसे प्रोजेक्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको लेंदी बना लेते हैं, ऐसे डालना पड़ेगा, तो B cos theta आ जाएगा इधर। तो B cos theta निकाला तो A को नीचे भेजो, जिसकी डायरेक्शन में निकालना है वो नीचे आ जाएगा, ए डॉट भी तो रहेगा ये ऊपर दोनों केसेस में, एंड जिसकी डायरेक्शन में निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो नीचे बी से डिवाइड करना है, मतलब डॉट प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट में हमें किसी वेक्टर का दूसरे की तरफ, दूसरी की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, जिसकी डायरेक्शन में निकालना है डॉट प्रोडक्ट को उससे डिवाइड कर दो। तो हमें किसकी डायरेक्शन में निकालना है, देखो यहाँ पर इसका इसकी डायरेक्शन में डिवाइड करना है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो और जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसका अमाउंट निकाल लो, ये बी हो जाएगा, है ना। जैसे ये बी की डायरेक्शन में निकालना है, दिस विल बी बी, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के और इसका बी का इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, √3 आ जाएगा ना, √2 आएगा, सॉरी। तो इसका डिवाइड कर दो जिसकी डायरेक्शन निकालना है। डिड आई डू इट, देखता हूँ, है, हाँ है शायद, यस, ये सॉल्व कर सकते कुछ भी। ओके, लेट अस सॉल्व इट, ये थोड़ा हैंड राइटिंग इज नॉट प्रॉपर, करते देखो। इज 2i कैप प्लस 3j कैप और b इज i कैप प्लस j कैप। ये वाला मैं कर देता हूँ, ये वाला आप कर लेना फिर। तो हमें क्या निकालना है, किसका कंपोनेंट a cos थीटा निकालना है, इसकी डायरेक्शन है b की डायरेक्शन, तो b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे, डॉट प्रोडक्ट तो दोनों में ही आएगा। तो a डॉट b इज, मल्टीप्लाई कर लो, 2 into 1 प्लस 3 into 1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसका √1 स्क्वायर प्लस 1 इसका √2 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है आपका, 5/√2। क्या आंसर दिया है, हाँ 5/√2 दिया, देखो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, जस्ट यू कैन डू इट फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैग्नीट्यूड निकालना है, एंगल निकालना है। अभी हम लोगों ने एंगल की बात की थी, मैग्नीट्यूड पहले निकाल चुके। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू कंपोनेंट। अभी इसके अलॉन्ग निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड तो वही आने वाला है फिर से, बट डॉट प्रोडक्ट कम हो जाएगा, माइनस आ जाएगा शायद। 2 into 1 2 हो गया, -3 into -1 तो -1 बचेगा। हाँ देखो ये आ रहा है, सेकंड पार्ट भी डायरेक्टली आ रहा है इसमें, ठीक है। तो देख सकते हैं दोनों पॉइंट एक साथ, देखो कंपोनेंट का ऊपर लिखा है, देखो ये आंसर है। आंसर को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कैन यू सी ऑल थिंग्स टुगेदर?
डन। अच्छा ऐसे भी तो बोल सकते हैं, राइट द कंपोनेंट इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बोलो? ये तो हमने उसका स्केलर फॉर्म में लिखा, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, कंपोनेंट को बोलिए हाउ टू डू इट इन वेक्टर फॉर्म। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ए cos थीटा को। बोलिए कैसे लिखेंगे? 5 √2 i cap। नो आई कैप नहीं, बी की डायरेक्शन में है, बी का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस थोड़ी है, दिस इज नॉट ये एक्स एक्सिस थोड़ी है, ये वेक्टर जस्ट हमने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे बनाया बी, है ना। बी कैन बी, इनफैक्ट बी विल बी लाइक दिस समवेयर, आई कैप जे कैप है ना, बी का इधर आएगा और ए किधर होगा, ए विल बी ए 45 है, ये थोड़ा सा और ज्यादा एंगल होगा, एक आई थिंक ऐसे कुछ होगा इधर। इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे ये कंपोनेंट है, बी को थोड़ा आगे ले लो, तो आई कैप की तरफ नहीं है वो, एक्स एक्सिस की तरफ नहीं है बी, बी इज पॉइंटेड इन दिस डायरेक्शन। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी का यूनिट, बी कैप करना पड़ेगा। इन द डायरेक्शन ऑफ बी है तो इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देगा उसको, तो आई कैप प्लस जे कैप बाय √2 ऐसा आ जाएगा ना। बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर, जिस डायरेक्शन में निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, अगर वो बोलेंगे वेक्टर फॉर्म में निकालना तब, otherwise it is given like this only, so we are not changing it, but for your knowledge I am telling you in vector form also you may be asked to do, particularly in competitive examination. ठीक है, तो ये पार्ट कर लेंगे, ये दोनों पार्ट देख लेंगे, ये मैग्नीट्यूड एंड एंगल निकालना। थोड़ा सा 5 मिनट और थोड़ा सा ले लेते टाइम, बिकॉज हमारे क्लासेस में भी हैम्पर्ड, कल भी नहीं है, हो सकता है मंडे को भी, मंडे ट्यूसडे भी पॉसिबल ना हो, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन डॉक्टर्स एडवाइस आई हैव टू going for cataract eye surgery tomorrow, maybe classes may be hampered, I don't know if they give me the clearance, so I will continue from Monday, otherwise I have to relax on Monday Tuesday। देखो थोड़ा सा 5-10 मिनट और लेते हैं इसको, जस्ट देखिए। second one is the vector or cross product। can I continue for 10 more minutes? बोलिए जल्दी से, no problem। Yes, sir. तो देखिए now vector or cross product, तो in this product फाइनल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। अभी जो इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C विल बी, सपोज A एंड B को मल्टीप्लाई करना है तो फाइनल क्वांटिटी जो है C विल बी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे टॉर्क का हमने फार्मूला पढ़ा है, ऐसे रेडियस वेक्टर को फोर्स वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते तो टॉर्क बनता है ना। ये आपका 7th चैप्टर में आएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट 7th चैप्टर में दिया आपको, ठीक है, रोटेशन मोशन वाले में, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन मोशन, ठीक है। तो वी गेट द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे हम क्रॉस यूज करते हैं। तो सपोज वी हैव द टू वेक्टर्स A एंड B इन दिस प्लेन, इस प्लेन में दोनों वेक्टर हैं मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर, तो A क्रॉस B विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालो इसका, और दोनों के बीच का जो एंगल है उसका साइन थीटा। तो ये तो स्केलर नंबर है, ये तीनों स्केलर क्वांटिटी आ गई, है ना। इसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं, लेकिन डायरेक्शन भी होनी चाहिए बिकॉज दिस इज द वेक्टर। तो डायरेक्शन इज एन कैप। एन कैप का मतलब क्या होगा? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू
A and B both perpendicular to the plane of A and B. जिस प्लेन में ये है दोनों वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, गिवन बाय राइट हैंड रूल। अभी राइट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल सीखना पड़ेगा, है। परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, दोनों। तो ऊपर है कि नीचे, दैट्स वी हैव टू डिस्कस बाय द राइट हैंड रूल। क्लियर? तो इसमें देखो, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है, ये ए एंड बी तो सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट में कॉस थीटा था, इसमें साइन थीटा है, ठीक है, इसमें साइन थीटा है। वेक्टर प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा आएगा और यूनिट वेक्टर भी, डायरेक्शन भी आएगी। तो ये दोनों वेक्टर देखो मल्टीप्लाई होने के बाद डायरेक्शन अप जा रही है डाउन जा रही है, पता, उसी प्लेन में नहीं। डोंट से सर इट विल बी बिटवीन समवेयर, डायरेक्शन विल बी बिटवीन समवेयर, नो, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing both the vectors A and B, दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर, अप या डाउन। वी हैव टू डिस्कस द राइट हैंड रूल। तो लेट्स सी, फर्स्ट लेट मी टेल यू राइट हैंड रूल आपकी टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा है, फिर मैं दूसरा डायग्राम भी दिखाता हूँ आपको। तो अच्छा, इसका मॉड लेंगे तो इफ यू टेक द मॉड, तो यूनिट वेक्टर का मॉड लेना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है, 1, तो हट जाएगा। तो यूनिट वेक्टर विल गो, मॉड ले लिया हमने, कैन यू सी, मॉड लेंगे, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये वैल्यू सारी, साइन थीटा भी 180 डिग्री तक पॉजिटिव रहता है। तो एन कैप डायरेक्शन हटानी है, मॉड में क्या है, डायरेक्शन हटानी है, माइनस है तो उसको प्लस करना है। तो ऑलरेडी ये सब प्लस है तीनों टर्म। थीटा कैन बी मैक्सिमम 180 डिग्री तक, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो एन कैप, मॉड एन कैप विल बी 1। तो मैग्नीट्यूड लिया तो ए बी साइन थीटा आ जाएगा, यूनिट वेक्टर हट जाएगा। नाउ देखो ए क्रॉस बी जो है इसमें हमने दिया है, ए क्रॉस बी अपवर्ड दिया है। तो अपवर्ड कैसे आता है, देखो ये रूल है, दोनों में से देखो कौन सा समझ में आ रहा है। ये देखो, ये जो है, ये आपने देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रू या बोल्ट और स्क्रू, ठीक है, ऐसे रहता है। इसमें थ्रेड्स रहते हैं ऐसे, जब इसको इधर ऐसे टर्न करते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है ना। स्क्रू ड्राइवर से हम टाइट करते हैं ना किसी स्क्रू को। तो अगर हमने ऐसे घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाते ना, क्लॉकवाइज है, देखो इसको, इफ यू सी फ्रंट, ऐसे देखो, सामने देखो, यहाँ पे कट भी रहता है स्क्रू। अगर तुम ऐसे घुमाओगे ना तो इट विल मूव फॉरवर्ड, अंदर की तरफ जाएगा। इसमें यहाँ से नीचे से टर्न करेंगे तो क्लॉकवाइज घुमाने से ऊपर जाएगा, तो उधर ही सी वेक्टर होगा। तो पहला वेक्टर देखो ए है इधर, और ये बी की तरफ टर्न करेंगे तो इट विल मूव अपवर्ड। तो यहाँ पे देखो सी विल बी अपवर्ड, इधर से इधर जा रहे हैं, ए क्रॉस बी, कोई स्क्रू हेड को आप स्क्रू ड्राइवर से घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो फर्स्ट वेक्टर पहले होना चाहिए, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर, ए क्रॉस बी की बात हो रही है बस। तो ए क्रॉस बी विल बी अपवर्ड। या फिर अपने राइट हैंड से देखो, फिंगर्स को, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को इधर रखो, पाम शुड बी दिस साइड। जब कर्ल करेंगे तो ऐसे टर्न होगा, तो थंब किधर होगा, थंब को परपेंडिकुलर रखेगा फिंगर से, फिंगर्स को कर्ल करना है पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। तो थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दैट विल गिव यू द थर्ड वेक्टर, सी वेक्टर देगा वो, क्लियर। और बी क्रॉस ए के लिए नीचे आ जाएगा, तो बी क्रॉस ए से अभी फिंगर सबको इधर रखनी पड़ेगी और इधर टर्न करनी पड़ेगी फिंगर्स को, पाम इधर। देखो इससे इजी मेथड में बता रहा हूँ, ये तो एनसीईआरटी बुक मेथड है। लेट मी गिव यू थर्ड मेथड आल्सो। देखो दूसरा मेथड देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी थिंग्स क्लियर नहीं है उतनी। देखो दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक, ठीक है। देखो ऐसे कर लो, सी आई थिंक ये दिस विल बी बेटर। व्हाट यू डू, फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर रखो, thumb should be right hand, thumb should be perpendicular to the fingers. Palm should be pointing to the second vector. उल्टा हाथ नहीं रखना है, पाम किधर होनी चाहिए, सेकंड वेक्टर को पाम भी दिखना चाहिए। पाम जिधर है, तुम्हारे हथेली जिधर है उधर सेकंड वेक्टर होना चाहिए, बैक साइड में नहीं होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, सामने होना चाहिए। तो बस जो थंब होगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दिखाएगा। इसमें क्या बोलते, कर्ल करो अपनी फिंगर्स। टर्न तभी कर पाएंगे जब पाम अपना सेकंड वेक्टर की तरफ पॉइंट, पाम सेकंड वेक्टर की तरफ है, then only we can curl towards second vector, then only we can turn towards second vector. So this much is enough. अगर आपने ये पोजीशन पकड़ ली तो आपको ए क्रॉस बी मिल जाएगा।
ए क्रॉस बी ऊपर आ रहा है और बोला जाए बी क्रॉस ए निकालो, तो जो पहले आएगा उधर ही फिंगर्स रखनी है। अभी बी क्रॉस ए निकालनी है तो आपकी फिंगर्स सारी किधर होनी चाहिए, बी की तरफ होनी चाहिए और थंब परपेंडिकुलर होना चाहिए उससे। पाम किधर आना चाहिए, दूसरा वेक्टर है, अभी सेकंड नंबर पे ए आ रहा है, तो नाउ पाम शुड बी टुवर्ड्स ए, मींस ए शुड बी कमिंग आउट फ्रॉम योर पाम, ऐसा समझ लो। पाम से एंगल ये 90 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों के बीच में अगर 90 है ठीक है, नहीं तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट पाम शुड बी टुवर्ड्स, मींस सेकंड वेक्टर शुड बी कमिंग आउट ऑफ योर पाम, परपेंडिकुलर और समझ लेंगे। और ये वेक्टर बिल्कुल फिंगर्स की तरफ होनी चाहिए। और कौन सा है, राइट हैंड है, देखो यू कैनॉट चेंज योर हैंड, राइट हैंड, वी कॉल इट राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट को व्हाट वी कॉल इट राइट हैंड थंब रूल, यू कैन टेक द पिक ऑफ दिस। ये दोनों वेक्टर अपनी जगह है, देखो ये मींस ये दो वेक्टर है ए बी, ए क्रॉस बी निकालना है, फॉर दिस पोजीशन ए क्रॉस बी विल बी पॉइंटिंग अपवर्ड, एंड यहाँ पे वेक्टर बी इधर है, ए इधर है, in this case we have to find out b cross a, so b cross a will be downward, which will be indicated by the thumb। thumb को चारों फिंगर्स को एक साथ रखो, thumb को बस अलग रखो, thumbs up है ना, thumbs up होल्डिंग वैसा टाइप, लेकिन उसमें मुट्ठी बंद करनी पड़ती है यहाँ पर, तो इसमें भी टर्न करना पड़ता है ऐसे। जस्ट आई एम टेलिंग यू डोंट टर्न, दिस मच इज इनफ, बट दे विल टेल यू ओके यू टर्न फिंगर्स सो दैट they should be coming towards B, तो वो तो दिख ही रहा है ना, अभी पीछे तो जा नहीं सकते, जब हम अपने हाथ को क्लिंच करेंगे तो फिंगर्स इधर ही आएंगे ना, बैकवर्ड थोड़ी हम उसको मुट्ठी बांध सकते हैं उसको। इसमें भी देखो अभी यू कैन नॉट गो बैक, आपका जो क्लिंच करना है मतलब आपको कर्लिंग ऑफ फिंगर सेकंड वेक्टर की तरफ लाना है, तो यू हैव टू टर्न नेचुरली दिस साइड, यू कैन नॉट गो बैकवर्ड, बैकवर्ड टर्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते है ना, फिंगर्स को हम ऐसे फॉरवर्ड ला सकते हैं। बोलिए इसमें, दिस इज ओके, तो ए क्रॉस बी इन दिस केस इज अपवर्ड, बी क्रॉस ए इन दिस केस इज डाउनवर्ड, ऐसे देखो। ओके यू कैन टेक द पिक इफ यू वांट। राइट हैंड है आपका, दोनों केसेस में राइट हैंड है, तो देखो यहाँ पर गोइंग बैक टू द फर्स्ट डायग्राम, शैल आई गो बैक टू द फर्स्ट डायग्राम? Yes. देखो ये आपका अकॉर्डिंग टू समवट सिमिलर है, देखो ये फिंगर्स आपने किधर रखी थी, ए की तरफ इधर, उसके बाद कर्ल किया आपने, पाम इधर ही है, देखो बी की तरफ पाम है, कर्ल करेंगे तो ऐसे, तो सी विल बी, थंब विल बी इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। देखो ए क्रॉस बी, इसमें देखो ए क्रॉस बी ऊपर आ गया, यहाँ से अपनी फिंगर्स इधर रखो और पाम इस तरफ फेस करनी चाहिए, थंब ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। और बी क्रॉस ए के लिए वही डायग्राम जो सेकंड डायग्राम था वैसा ही टाइप है, देखो फिंगर्स इधर रखो राइट हैंड की, थंब नीचे की तरफ जाएगा और पाम शुड बी टुवर्ड्स ये देखो ये डायग्राम के साथ मैच हो रहा है बी क्रॉस से, ठीक क्लियर? तो यू कैन जस्ट, आई विल गिव यू पॉइंट्स आल्सो, आई एम गिविंग यू रिटन पॉइंट्स ऑफ दिस, क्या क्या पॉइंट तुम्हें ध्यान रखने हैं डायरेक्शन निकालने के लिए ना, तो आई नोटेड पॉइंट्स। तो ये देख लो, ये आपका नीचे क्या लिखा था, ओके ओके दिस इज ओके, देखो यहाँ तक डन। यस सर। ये दोनों टेक्स्ट बुक के डायग्राम है। नीचे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मॉड लिखा हुआ, देखो दिस वी कैन बाद में नोट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में नोट कर लेंगे, दिस इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। ये डायरेक्शन हो गई है ना, डायरेक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स भी दे रहा हूँ मैं आपको, इफ यू फाइंड डिफिकल्टी यू कैन जस्ट रेफर द पॉइंट्स। देखिए ये हो गया, ओके तो पॉइंट्स क्या है, देखो ऐसे रहेंगे पॉइंट्स, ये क्वेश्चन है उसके बेस क्वेश्चन है, पॉइंट देख लो ऐसे, देख लो क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना, जैसे ए क्रॉस बी के डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो ए इस तरफ है और बी इस तरफ है ना, तो प्लेस ए एंड बी टेल टू टेल, दोनों को ज्वाइन करो, टेल दोनों की टेल ऑलरेडी ज्वाइन थी वहां, तो टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया हमने। पॉइंट फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड अलोंग ए, अपनी फिंगर्स को इस तरफ पॉइंट करो, विद पाम फेसिंग टुवर्ड्स बी, पाम बी की तरफ होनी चाहिए, यहाँ पे देखो पाम बी की तरफ है, कर्ल फिंगर्स टुवर्ड्स बी, फिंगर्स को कर्ल करो, अभी फिंगर्स कर्ल करेंगे तो ऑटोमेटिकली बी की तरफ आएगा, दिस पॉइंट इज ऑप्शनल है ना,
नहीं भी किया तो नो प्रॉब्लम। थम पॉइंट्स इन ए क्रॉस बी, थम पॉइंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है। Yes, sir. Curling is not mandatory. I told you curling is not, but as they have written, you can just note down. तो ये आपका रूल हो गया। ऐसे बी क्रॉस से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बी क्रॉस ए का भी दिखा दो उसके नीचे, इट इज ओके इनफ। चलो बी क्रॉस ए देखते कैसे, बात वही है, एक ही पॉइंट्स है, बट योर आपके दिमाग में जाने चाहिए क्या करना है। तो दिस इज ओके, दिस पॉइंट्स आर सफिशिएंट है। 4 पॉइंट्स आपको याद रखेंगे हमेशा, तो यू विल नेवर गो रॉन्ग। पर्टिकुलरली पाम फेसिंग टुवर्ड्स बी, और थंब फिंगर से, ये फिंगर्स ऐसे, और थंब 90 डिग्री पे होने चाहिए फिंगर्स, ठीक है। बी क्रॉस ए भी देखते चलो, लेट्स सी बी क्रॉस ए। नीचे है शायद उसका डायग्राम, देखो बी क्रॉस ए के लिए भी वही पॉइंट्स फॉलो करनी है। देखो देखो बी क्रॉस ए निकलना है, देखो यहाँ पे देखो बी क्रॉस है, तो पाम प्लेस बी, प्लेस वेक्टर बी एंड ए टेल टू टेल, वो तो करनी है आपको, टेल टू टेल इंश्योर करनी है, टेल टू टेल जॉइन, दिस यू हैव टू इंश्योर। नाउ पॉइंट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग बी, अभी बी की तरफ फिंगर्स लानी है तुम्हें राइट हैंड की, एंड थंब शुड बी परपेंडिकुलर टू फिंगर्स, ये भी याद रखना है। एंड पाम फेसिंग ए, अभी देखो पाम किधर है, इस पाम वेक्टर ए सामने है इधर, तो तुम्हारी पाम की देखो ये बैक साइड ऑफ हैंड है, देखो कैन यू सी क्लियरली, ये बैक साइड ऑफ हैंड है, पाम उस तरफ है, एक ही तरफ है, क्लियर। तो पाम व्हाट इज कॉल्ड, वेयर इज द पॉइंट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग बी विद पाम फेसिंग टुवर्ड्स ए, ए सामने है। देन कर्ल योर फिंगर्स, अभी फिंगर्स कर्ल करेंगे तो एक एक कर्ल करेंगे, ओके यू आर देयर, कर्ल करेंगे तो फिंगर्स एक ही तरफ जाएंगी, है ना, एक को जाके टच करेंगे, दैट्स द ऑप्शनल पॉइंट। नाउ थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन बी क्रॉस ए, नीचे की तरफ आ रहा है, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड, ठीक है। बी क्रॉस ए हैज द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाला पॉइंट मैंने लिखा था वहां पर, we'll this magnitude we can discuss. Only thing I want you to have the directions, मतलब confidence in the direction, because ये 12th तक अभी तक मुझे समझाना पड़ता है स्टूडेंट्स को, I mean लास्ट तक प्रॉब्लम आती है 12th के स्टूडेंट को, सभी वेक्टर्स सभी चैप्टर्स में आता है, तो दे फील फाइंड डिफिकल्टी। तो आई वांट यू टू जस्ट इंश्योर दैट यू कैन फाइंड आउट डायरेक्शंस प्रॉपरली, ए क्रॉस बी की और बी क्रॉस ए की। फर्स्ट वेक्टर जो भी सीक्वेंस में जो पहले आएगा उधर ही फिंगर रखनी है। हमें बी क्रॉस ए निकलना है तो फिंगर्स बी की तरफ रखो, पाम शुड बी टुवर्ड्स ए, देन कर्लिंग एंड थंब विल इंडिकेट द बी क्रॉस ए। और ए क्रॉस बी निकलना है तो ए की तरफ फिंगर्स रखो, पाम शुड बी टुवर्ड्स बी, तो और कर्लिंग करेंगे तो बी की तरफ फिंगर्स आके टच करेंगे और थंब विल इंडिकेट ए क्रॉस बी। तो जो पहला वेक्टर है उधर फिंगर्स रखनी है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। दो क्वेश्चन है इसके, मैं उसको देख के वाइंड अप कर देता हूँ, या फिर अभी डायरेक्शन बतानी है तो बता दीजिए, चेक भी हो जाएगा अभी आपका समझ में आया कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन है दोनों डायरेक्शंस के लिए, ठीक है। ये देख लिया, इसका अगर पिक लेना तो ले लो, ये दिस इज द मेन पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। एक ये है और एक ये है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, ये वाला देखो, यदि ये वेक्टर इज हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम यू, जहां पे आप खड़े, आप यू आर इन द स्टैंडिंग पोजीशन, आप खड़े वेयर एवर यू आर, नो प्रॉब्लम। तो वेक्टर इज हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर की तरफ है, हॉरिजॉन्टल भी है, एंड बी इज हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स योर लेफ्ट, वेक्टर ए दूर जा रहा है सर, और बी इधर जा रहा है ना। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए इधर है और बी इधर है, इधर फिंगर्स रखो और पाम इधर होनी चाहिए। रिजल्ट पढ़ लो बस, नहीं सिर्फ रिजल्ट देख लो तो मैंने ओके। हाँ बस सर एक मिनट मोहित सर, जस्ट, हाँ क्लास है क्या अभी तुम लोगों का, इसके बाद डू यू हैव द क्लास, आर वी डूइंग ओवर टाइम? पर आपको लेना है तो आप ले लीजिए, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जस्ट 2 मिनट मैथ्स का सर, 2 रिपीट क्लास है। ओके 2 मिनट में, ठीक है। तो ए दूर जा रहा है और बी इधर जा रहा है ना, Upward.
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? तो थंब ऊपर आएगा तो सारी फिंगर्स को इधर रखो, पाम इधर होगा तो थंब ऊपर आएगा, ऐसे कुछ फिंगर्स आएंगे ऐसा, अभी बनाना मुश्किल है डायग्राम। तो सारी फिंगर्स को इधर रखो, फिंगर्स इधर रखो ए की तरफ, और पाम इधर होनी चाहिए बी की तरफ, तो थंब ऊपर जाएगा। तो आंसर क्या है? अपवर्ड। इसका आंसर अपवर्ड लिख लो। ऐसा कुछ मैंने बनाया हुआ था देखो रफली, ठीक है, क्लियर है ना? फिंगर्स तुम्हें किधर रखनी है? इधर रखनी है, पाम इधर होगा, थंब ऊपर जाएगा। हाथ का डायरेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल था, मैंने बनाया था नहीं, ठीक है, समझ में आ गया ये? आप आंसर है। ऑलराइट, ऐसे ये वाला कर लेना, ये होमवर्क में कर लेना डायरेक्शन के लिए। वेक्टर ए इज हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम यू एंड बी इज अपवर्ड। बी किधर है? अपवर्ड है। एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड यू आर फेसिंग, अच्छा तुम्हारी कंडीशन भी दी है, यू आर फेसिंग नॉर्थ है ना, ऐसा भी दिया है, यू आर फेसिंग किधर? फेसिंग नॉर्थ। एक मिनट, जस्ट लेट मी कंप्लीट इट। यू आर फेसिंग नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, यहाँ पे क्लोज कर रहा हूं मैं, एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर नेक्स्ट क्लास में। तुम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो, ठीक है? ठीक है, दिस इज होमवर्क वन। एंड कर दो। एनीथिंग यू वांट टू क्लेरिफाई? आपको कुछ क्लेरिफाई करना है अभी? आई एम फ्री, जस्ट आई कैन टेक योर डाउट्स, या कुछ मिस हो गया हो तो पूछ लीजिए। एंड फ्रॉम माय साइड इट इज ओवर विद दिस होमवर्क।